Good morning, class 11. Today we are going to here study chapter number 1. So our topic or chapter number first chapter is classification of human activities. First we learn what is the meaning of human activities. Okay. Here is the written all those activity which is undertaken by human being for satisfying human wants is being called human activities. Okay. Here is the undertake means promise to do something. Undertake is a legal word, but here is written what is the meaning of undertake. Undertake means promise to do something. All those activity means like a person walking, chatting, teaching, doing job, working under someone. All those activity which is undertaken by means doing by human being to satisfy human want. Satisfy human want means to satisfy other wants or satisfy or for their personal satisfaction. Okay, this is all is being called human activities. Now come here on the features. What is the features of the human activity? First point is saying it is done by human being and also human efforts. Okay, first point is saying it is done by human being, मतलब किसी इंसान के द्वारा किया गया, इंसान कर रहा हो और उसका efforts हो. ठीक है. Second point is saying to satisfy human wants which are unlimited. Meaning is this: to satisfy human wants. Human wants means किसी न किसी की want satisfy होगी, या तो द पर्सन जो इंसान खुद वो काम कर रहा है उसकी wants और द पर्सन डूइंग फॉर अदर पर्सन उसकी want. क्लियर है? विच आर अनलिमिटेड मीन्स wants अनलिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि एक खत्म तो दूसरा शुरू, एक खत्म तो दूसरा शुरू. दैट इज द अनलिमिटेड. सेकंड में कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. डेफिनेटली ये पॉइंट कह रहा है कि ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यू रहता है. अगर एक चीज खत्म तो दूसरा शुरू, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ भर में ये कंटिन्यू रहता है. कोई ना कोई एक्टिविटी इंसान करता रहता है. ठीक है ना? एक बच्चा हो वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है. और एक एजेड पर्सन, द पर्सन हु इज मोर देन 60 ईयर, मोर देन 80 इयर्स, दैट पर्सन इज आल्सो डूइंग सम एक्टिविटीज. तो वो सारी एक्टिविटीज क्या होती है? दैट इज द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ फोर्थ पॉइंट का वाइड रेंज होता है इनका, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का बहुत वाइड मींस. मीनिंग इज दिस कि जो भी हम लोग के अगल बगल में आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं सब कौन कर रहा है? दैट इज ऑलवेज विच इज डूइंग बाय ह्यूमन बीइंग. इवन मशीन जो काम कर रहा है वो भी मशीन ऑपरेट कौन करता है? ऑल्सो ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग. मशीन हो, मैन मेड मशीन हो या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना हो. ठीक है, ये सब क्या होता है? टोटल ऑल दीज एक्टिविटीज doing by human being. Now, fifth and last point is saying perform for earning money and for all or for obtaining personal satisfaction. या तो अर्निंग मनी के लिए कर रहा हो या फिर खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हो. क्लियर है? अर्निंग मनी मीन्स अगर हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द अर्निंग मनी. लेकिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीन्स कुकिंग फूड, अपने बच्चों के लिए फूड बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं पार्क में वॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल योर पर्सनल satisfaction. Now our next point will be what is the meaning of classification of human activities, means economic activities and non-economic activities. Now our this topic is human activity. What is the classification of human activities? First point is saying economic activities and second point is non-economic activities. Here we learn what is the meaning of economic activities. All those activities which are undertaken for to earn our living. Okay, all those activities which is undertaken, which is doing to earn our living and thereby satisfy human want. और उसके बाद क्या करेंगे? हम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेंगे फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और क्रिएटिंग वेल्थ. फर्स्ट पॉइंट, ऑल दोज एक्टिविटी विच is doing by a human being for earning a living and satisfy human want for the object of earning income and creating wealth. This point is saying all those activity which is doing by human being, ठीक है, all those activity which is done by human being for earning living and also satisfy human wants for the object of creating income or wealth. For the object of creating income or wealth. अगर हमारा ऑब्जेक्ट ना हो, if a person object is not to create income or wealth, that means it is not economic activity. Okay, और हमारा एक और ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे.
means all those activity which is undertaken or doing by a human being to earn a living, okay, and satisfy human wants, ठीक. Now fourth point is for the object of earning income or creating wealth. This is our the main definition of economic activity. Now comes here a non-economic activity, activity which is undertaken to satisfy social, religious and cultural activities. A person who is doing social, religious or cultural activities or any type of sentimental activities for the object of not earning income or creating wealth. This is our non-economic activity. Again, I am repeating what is the meaning of economic activity or what is the meaning of non-economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा की जाती है, ठीक है. एक इंसान करता है, किस चीज के लिए करता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग, लिविंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ. ओके, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक द एक्टिविटी विच इज डूइंग बाय अ पर्सन फॉर देयर पर्सनल satisfaction, but the object is not to create income or wealth. This is the non-economic activity. Now in next topic we will learn what is the features of economic activity and what is the examples of economic activity and non-economic activity. Now our this topic is what is the features of economic activities. What is the features of economic activities? First point is saying economic motive. किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए. इकोनॉमिक मोटिव मीन्स अर्निंग इनकम, क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है. अर्निंग इनकम होगा तभी तो हम वेल्थ क्रिएट करेंगे. और क्या होना चाहिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए वो स्ट्राइव करे, ठीक है, इनकम अर्न करे. क्लियर है? इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए मीन्स अर्निंग इनकम, क्रिएटिंग वेल्थ, उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. दिस इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड पॉइंट क्या रखिए? और इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव होना चाहिए. प्रोडक्टिव मीन्स कि सेल हो, परचेज हो, क्लियर, ट्रेडिंग हो, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक, गुड्स का प्रोडक्शन हो. ऑल ऑफ दिस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मीन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए. सेल, परचेज, ये प्रोडक्टिव होना चाहिए कि हमारा कोई जो भी ऑब्जेक्ट हो. सपोज करो आई एम टीचिंग, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए. दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. ये सब इंक्लूड होते हैं प्रोडक्टिव के केसेस में. थर्ड पॉइंट इज सेइंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब इन्वॉल्व होने चाहिए. इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन बीइंग, सब इनके एक्टिव होने चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. और फोर्थ पॉइंट इज सेइंग रिलेटिव यूजेज. जो हमारे लैंड, लेबर है ना, ये सब लैंड हो गया, लेबर एंड कैपिटल, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉर बेटर आउटपुट. प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉर बेटर आउटपुट. ओके, दिस इज आवर फोर्थ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिफ्थ वन कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए. डेफिनेटली अगर हमारा सेल परचेज होगा, लैंड लेवल प्रॉपर वे में यूटिलाइज होंगे, तो हमारी इकोनॉमिक, हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन वो क्या होगी? अच्छी होगी. और लोगों के पास जॉब क्रिएट होंगे. जॉब क्रिएट होंगे तो उनका क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? अच्छा होगा, बढ़िया होगा. क्लियर है? क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे तो मार्केट से बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से वो कंज्यूम कर सकते हैं. उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी. अगर वो अर्निंग फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम करते थे, उससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. क्लियर है? नाउ सिक्स पॉइंट इज सेइंग लीगली वैलिड. डेफिनेटली ये हमारा क्या होना चाहिए? अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. ये हमारे जैसे किडनैपिंग का बिजनेस नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. ये सब हमारे क्या होते हैं? ये ऑल ऑफ दीज आर आवर इकोनॉमिक फीचर्स. ओके, हियर let's take some example of what is the example of non-economic activities. Here let's take some example of what is the example of non-economic activities. Our first example is
कुकिंग, अगर आपकी मम्मी, आपके घर में कोई इंसान आपके लिए खाना बनाता हो, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वॉकिंग, अगर हम पार्क में टहलते हैं कहीं भी, क्लियर है, पार्क में टहलते हैं तो फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, बट दिस इज डूइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, डेफिनेटली दिस इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज, बट दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ प्रेइंग, this is also doing for our mental satisfaction, this is also doing by human being, but this is not economic activities. Okay, this is a many example for doing social, any type of social work, donating blood for the no object of earning income, donating blood, ठीक है, और working in NGO for the not the object of earning income. All of this is the example. All of these are example of non-economic activity. Now our next topic will be start in our next video. Till that, thanks.